When you look at sky, you look at clouds. Suppose you're traveling in a desert. What you look for is peace. You look at the world war, you would never get a peace. Right now in today's world, even the Syria is bleeding because they do not have a peace at all. What we need in life is peace. Let's go ahead and take a journey so that we can find peace, which is located at Mumbai Vipassana Pagoda. Let's take a ferry ride to reach Pagoda. We reach to our destination. Before we go inside, let's find out how this building was made. In October 1997, the foundation stone of the global Vipassana Pagoda was laid on the Essel Plateau in Mumbai. Construction of temple is not an easy task. And that too, with a huge building like this, pagoda has never been an easy task. People have really worked hard for this building. This Myanmar Gate is a massive entrance to the global Vipassana Pagoda. This Myanmar Gate is donated from the Myanmar. Now we see this huge bell tower. This bell tower is an open structure designed in the traditional Burmese architecture, holding a massive bell. This bell is donated by the people of Myanmar and was imported to India. It is approximately 8 feet high. The pillar holding up the rod and bell have been decorated with 4 Deva-like sculpture surrounding the bell. Each is approximately 14 feet high. The complex tower has been made up in intricate design reflecting the Burmese culture. The gong tower is a mirror image of the bell tower. The pillar dome of such a magnitude is a marble. The top keystone itself weighed 10 tons and it remained in place at 90 feet height without any centering during construction. These massive stones are suspended over our heads, locked into place by interlocking principles of one stone, gripping and holding another in a ring form. The more weight that is added to the stones is more firmly the stones grip and hold each other to defy gravity. The project team didn't have prior knowledge as a reference.
The biggest dome built anywhere in the world before the global pagoda is the dome at Bijapur. This person gives a 10-minute commentary about the temple of pagoda, and he even tells some of his teachings of Buddha. Buddha asked all of his followers not to take his word as true, rather to test them, to apply them while teaching. Here you can attend 10 minutes course of meditation. Buddhism is a religion to about 300 million people around the world. The world comes from Buddhi to awaken. It's originated about 2500 years ago, when Siddhartha Gautama, known as Buddha, was awakened, enlightened at the age of 35. Buddhism goes beyond religion and is more of a philosophy or a way of life, to lead a moral life, to be mindful, to develop wisdom and understanding. Buddhism explains a purpose to life. It explains injustice, inequality around the world. It is a code of practice. Buddhism is becoming popular in Western countries for the number of reasons. It has a deep understanding of the human mind. Buddha was not a god. He never claimed. He was a man who taught a path to enlightenment from his own experience. Buddhists pay respect to the images of Buddha, not in worship, not for the favors. Real Buddhism is very tolerant and concerned with the labels like Christian, Hindu, Muslim. That is why there never been any wars in the name of Buddhism. Buddha teach, including the sufferings that we have, like pain, getting old, disease, ultimate death. He also tells about suffering like loneliness, frustration, fear, disappointment. This huge meditation hall is 280 feet in diameter and has a seating capacity of 8,000 people. Here people can come and meditate. You can even see the picture of Mr. S.N. Goenka, and above that it is the wheel of Ashoka. Real Buddhism is very tolerant and concerned with the labels like Christian, Hindu, Muslim. That is why there never been any wars in the name of Buddhism. Karma is the law that every cause has an effect. Our actions have result. Buddhism teaches the wisdom should be developed with compassion. At one extreme, you should be a good-hearted fool, and other extreme, you could attain knowledge without any emotion. The original video, which is there in the video library, where you can find out the entire footage about this temple and some of the teachings. बुद्ध की शिक्षा को भारतीय सीमा के पार पहुंचाना। उन्होंने पड़ोसी देशों में कई धम्मदूत भेजे। वहां धर्म ने जड़ें पकड़ी और खूब पनपा भी। जहां-जहां लोगों को इस धर्म से लाभ हुआ, उन्होंने श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए भारत के स्मारकों जैसे स्मारक वहां भी बनाए। ये स्मारक अधिकतर सम्राट अशोक के बनाए हुए सांची के स्तूप पर आधारित थे। हालांकि उनकी बाहरी रचना वहां की भिन्न-भिन्न संस्कृतियों के अनुसार थी।
कुछ एक स्मारक बोध गया के महाबोधि मंदिर की रचना का आधार लेकर भी बनाए गए, जहां बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई थी। लेकिन जहां इस धर्म की ज्योति कई देशों में उज्ज्वलित हुई, भारत में धीरे धीरे धुंधली होती गई। बुद्ध की निष्कलंक शिक्षा में मिलावट होने लगी, लोग उसे भूलने लगे और फिर धीरे धीरे वो अपनी जन्मभूमि से लुप्त हो गई, मानो जैसे धर्म चक्र प्रवर्तित हुआ ही था थम जाने के लिए। आज भी भारत में बुद्ध सम्मानित हैं, पर अधिकांश भारतीय उन्हें अनेक हिंदू देवताओं में से एक समझते हैं। भारत के इस महान पुत्र के बारे में लोगों को बड़े अस्पष्ट से ख्याल हैं और उनके द्वारा खोजे गए सार्वजनिक धर्म और शिक्षा के बारे में वे पूरी तरह अनजान हैं। कुछ पड़ोसी देश जैसे म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस ने बुद्ध की वाणी को पाली त्रिपिटक के रूप में संभाल कर रखा, जिसकी वजह से प्राचीन काल से लेकर अर्वाचीन युग तक विश्व को बुद्ध की वाणी ज्ञात रही। किंतु म्यांमार ने केवल वाणी को ही नहीं, उसके प्रायोगिक हिस्से को भी संभाल कर रखा। आचार्यों की श्रृंखला ने विपश्यना ध्यान साधना को उसके शुद्ध स्वरूप में जीवित रखा। इसके उज्जवल उदाहरण थे परम पूज्य वेबू सायडो और उनके पहले परम पूज्य लेडी सायडो, जिन्होंने सभी गृहस्थों के लिए धर्म और विपश्यना अभ्यास के द्वार खोले। उन्होंने अपने होनहार गृहस्थ शिष्य सयाथेट जी को आचार्य नियुक्त किया। सयाथेट जी के अग्रणी शिष्य थे सयाजी उबाखेन, जिन्होंने म्यांमार की सरहदों से पार पूरे विश्व में धर्म के प्रसार का मार्ग प्रशस्त किया। दक्षिण पूर्वी एशिया में पीढ़ियों से एक मान्यता चली आ रही थी कि बुद्ध के 2500 वर्ष के बाद धर्म एक बार फिर उसकी जन्मभूमि भारत लौटेगा और वहीं से विश्व भर में फैलेगा। विपश्यना के महान आचार्य सयाजी उबाखेन दिल से इस भविष्यवाणी को सच होते देखना चाहते थे। वे इस अनमोल धर्म रत्न के लिए म्यांमार को भारत का ऋणी मानते थे और उस ऋण को चुकाना चाहते थे। सयाजी ने उनके धर्मपुत्र सत्यनारायण गोयंका को विपश्यना आचार्य के रूप में अधिकृत किया और भारत को इस धर्म शिक्षा रूपी धरोहर को वापस लौटाने का कार्यभार सौंपा। सयाजी की इस सदिच्छा से प्रेरित होकर श्री सत्यनारायण गोयंका ने अपने जीवन को इस उदात्त ध्येय के लिए समर्पित करते हुए भारत और अन्य देशों में विपश्यना ध्यान सिखाना शुरू किया। आज इस धर्म ध्येय को एक नया आयाम प्राप्त हुआ है। बुद्ध की जन्मभूमि भारत में ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा नामक एक अद्वितीय स्मारक का निर्माण हुआ है। ये अद्भुत स्मारक धर्म का दीप स्तंभ बनेगा, एक ऐसा प्रकाश स्तंभ जो विश्व भर में फैले अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करेगा। इस अद्भुत ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा का निर्माण आने वाली सदियों तक ये स्मरण दिलाएगा कि जब भारत ने धर्म शिक्षा खो दी, तब म्यांमार ने उसे संभाल कर रखा। म्यांमार में प्राचीन स्तूप भारत के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता अर्पण करते हुए सांची के स्तूप जैसे बनाए गए थे। आज भारत में ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा म्यांमार के प्रति कृतज्ञता अर्पण करते हुए वहां के सुख्यात श्वेतागोम पगोड़ा जैसा बनाया गया है। ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है, बुद्ध के प्रति और उस अद्भुत धर्म के प्रति जिससे उन्होंने मानव समाज को अवगत कराया, उस आचार्य परंपरा के प्रति जिन्होंने इस धर्म को विशुद्ध रूप में सुरक्षित रखा।
ये कृतज्ञतापूर्ण अर्पण है सयाजी उबाखिन के प्रति, जिनके दृढ़ संकल्प की वजह से ये धर्म फिर भारत आया और यहाँ से विश्व भर में फैला। जिस स्थान का इस पगोड़ा के लिए चयन किया गया है वो घनी आबादी वाले मुंबई शहर का उपनगर है। मुंबई जो 1 अरब की आबादी वाले इस देश का प्रमुख व्यावसायिक और पर्यटन केंद्र है। हजारों लाखों भारतीय और विदेशी पर्यटक इस पगोड़ा का दर्शन करने आएंगे। इस भव्य स्मारक के चारों ओर एक ऐसा पठार है जिस पे 10,000 पर्यटक चल सकें। इसकी उत्तर और दक्षिण दिशा में 2 और छोटे पगोड़ा बनाए गए हैं। ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा महत्वाकांक्षी निर्माणों में से एक है। यह विश्व का पत्थर से बना हुआ सबसे बड़ा गुंबद है। भारी पत्थरों को बड़ी कुशलता से एक दूसरे से जकड़ा गया और ऐसे बना एक विशाल स्तंभ रहित गुंबद। इस भव्य स्मारक के निर्माण में हजारों पत्थरों का उपयोग हुआ, जिन्हें हजारों ट्रकों में मीलों दूर खदान से लाया गया। ये भारी पत्थर बड़ी सावधानी से तराशे गए और फिर आकृति के अनुसार बिठाए गए। इस भव्य निर्माण में सैकड़ों कुशल कारीगरों की मेहनत लगी है। फरवरी 2009 में ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा के अनावरण समारोह में हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। एक बहुत बड़ा तराशा हुआ स्फटिक और रत्न जड़ित ध्वज इसके शिखर पर स्थापित किया गया। इसके भीतर के गुंबदीय कक्ष में गोयनका जी ने हमेशा की तरह सरल पर हृदय स्पर्शी शब्दों में धर्म समझाया। कुछ ही देर बाद गोयनका जी ने इस पूरी तरह निर्माण हुए स्मारक में पहला धर्म प्रवचन दिया। इस प्रसंग पर भारत की राष्ट्रपति माननीय प्रतिभा पाटिल व भारतीय और पड़ोसी देशों के गणमान्य अतिथि और विश्व भर से साधक उपस्थित थे। वे सभी बुद्ध की शिक्षा को सम्मान देने के लिए खींचे चले आए थे, जिसका अब ये बुलंद इमारत प्रतिनिधित्व करती है। ये अद्भुत पगोड़ा भव्य भूतकाल के प्रति स्मरणांजलि से कहीं बढ़कर है। इसका शानदार और कलात्मक बाहरी हिस्सा अवश्य ही ध्यान खींचता है, तो भीतरी हिस्सा पूरी तरह से उपयोगात्मक है। पगोड़ा के भीतर एक बहुत बड़ा ध्यान कक्ष है, जहां एक साथ हजारों साधक बुद्ध द्वारा सिखाए गए विपश्यना ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। पगोड़ा को ध्यान केंद्र का उपयोगात्मक हिस्सा बनाना ये सयाजी उबाखिन की सबसे बड़ी खोज थी। यांगों में सयाजी उबाखिन के साधना केंद्र के मध्य में एक पगोड़ा है, जिससे लगकर श्रेणीबद्ध शून्यागार है। ये उनकी विचारधारा को दर्शाता है कि विपश्यना ध्यान द्वारा धर्म का अभ्यास और प्रत्यक्ष अनुभव ही बुद्ध के प्रति सम्मान जताने का श्रेष्ठ पर्याय है। The Buddha statue is carved from single rock of marble, and the Buddha is carved in a seated, meditative posture. The statue is painted over the white marble, giving the statue more lifelike view. Seating the wheel of Dhamma in motion, passing away of the Buddha.
An RCC umbrella has been hung over the statue. Bells similar to the ones hanging on the umbrella over the main pagoda has been attached. Buddhism goes beyond religion and is more of a philosophy or a way of life. To lead a moral life, to be mindful, to develop wisdom and understanding. पगोड़ा जाके दिमाग को बहुत शांति मिलती है।